हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल नुक्ते जिंचू। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सभी के लिए, तो बने रहिएगा आखिर तक। आज हमारे गांव में थिंसा विलेज में सेवा आपके द्वार 2.0 सेशन होने वाले हैं, जिसके लिए हमारे अरुणाचल प्रदेश के ऑनरेबल गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल कैवलिया त्रिविक्रम प्रणेक जी भी आ रहे हैं। हमारे 55 और 56 कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए भी आ रहे हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे ऑफिसर्स भी आएंगे। और सेवा आपके द्वार का मतलब आपको ये वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आएगा कि इसमें गवर्नमेंट हमारे किस तरह से मदद करते हैं, कौन कौन से स्कीम्स उन्होंने हमारे लिए निकाले हुए हैं। और आज के जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ हमारे गांव के लोग नहीं हैं, हमारे पड़ोसी गांव के लोग भी हैं और बहुत सारे दूर दूर से ऑफिसर्स भी आए हुए हैं। सो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। और ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो हमारे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल थिंसा के कंपाउंड में हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए हमारे गांव में बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी, लेकिन हमारा वेदर ने हमारा साथ नहीं दिया। आप देख सकते हो सब गंदे हो गए, सब गीले हो गए हैं, पानी वगैरह सब जमा हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ये लोग हैं हमारे बस्ती के फोक डांसर्स, जो हमारे गवर्नर सर को आगे वाले गेट से रिसीव करने वाले हैं फोक डांस करते हुए। और ये है अंदर का हॉल, यहाँ पे हमारे सिंगर्स भी रेडी होके बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारे एक्स सर्विसमैन लोग हैं और बहुत सारे पब्लिक्स है, बहुत सारे ऑफिसर्स, हमारे एमएलए भी आए हुए हैं अभी। यहाँ पे सभी हमारे गवर्नर सर को रुक रहे हैं। और ये हमारे गांव के वीमेंस है जो कि बाद में मेगा डांस परफॉर्म करने वाले हैं। और हमारा ये ट्रेडिशनल ड्रेस इतना कलरफुल है। और अभी हमारे जो गवर्नर सर है वो आ चुके हैं। आज का प्रोग्राम में आज का वेदर ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है, स्पेशली जब सर का एंट्री हो रहा था उसमें, क्योंकि आज वेदर बहुत ही ख़राब था। वो लोग फोक डांसर्स लोग आगे वाले गेट से रिसीव करने वाले थे सर को, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। Most respected DGP of Arunachal Pradesh, IPS Anand Mohan sir, most respected Joint Secretary sir, Sri Atish sir, also the Prabhari of Tira district under Viksit Bharat Sankalp Yatra, Madam Anita Singh, DDIV, Secretary to Government, respected ZPC, DC and SP, all the officers and people of Hinsa, Sanyam, KT and Pongkong village. I am Dr. Riddhi Doni, Circle Officer and also the Nodal Officer of Sarkar Aapke Dwar, and I welcome you all to the Seva Aapke Dwar 2.0 in Hinsa village. Now may I request you all to raise 4 national anthems.
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Srimati Chakatabu Madam would like to felicitate our Honorable Governor of Arunachal Pradesh. Sir, also the villagers would like to express their love and appreciation to you through a small token of love. So I will request the villagers to kindly felicitate our governor, sir. Hello. Hello. This is traditional work by villagers. This is traditional jug which is made of bamboo and crafted by the villagers themselves. Year of millet. And then next we would like to felicitate our first lady. Madam, this is our traditional Nokte Gale. Now we would also like to felicitate respected DGP Sir IPS Anand Mohan ji. Thank you, sir. Next we have Joint Secretary MSME Government of India Sri Atish Singh Kumar sir. We also have Madam Anita Singh. Thank you, ma'am. Next we have Secretary to Governor. Thank you, sir. Didi IPS. Thank you all. Now, sir, we have many awards and felicitation to be given in Sarkar Aapke Dwar. But due to paucity of time, we have chosen only two. So I would like to request WCT Madam, and I would like to call Rosni Nath of Government Town Secondary School. This is under the scheme Beti Bachao Beti Padhao Yojana. So I would like to call Rosni Nath of Government Town Secondary School, and also Miss Chaijan Anna of Government Higher Secondary School, Konsa. Sir, they are the female district topper of our district.
Father of Rosni Nath of Government Town Secondary School, Konsa. Thank you, sir. Miss Chajan Anna of Government Higher Secondary School, Konsa. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now we have a speech by Honorable Governor of Arunachal Pradesh. माननीय एमएलए साहब, मैडम एमएलए, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और तिनसा गांव के मेरे सारे भाई बहनों, बच्चों और मेरे एक सर्विसमैन भाइयों जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, और जीबीज, पीआरआई के मेंबर्स, कम्युनिटी की मेंबर्स और सभी जो यहाँ उपस्थित है, मैं आप सबको आपका अभिनंदन करता हूँ कि बारिश होने के बावजूद आप लोग यहाँ आए और आप इस प्रोग्राम में जो है सम्मिलित हुए हैं। जो उत्साह आप लोगों ने दिखाया है बारिश होने के बावजूद भी, उससे ये साफ जाहिर होता है कि आप अपने जो तिनसा गांव है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जितने भी बेनिफिशरीज जो योजनाओं को चलाया जा रहा है उन सबको जो है आदरपूर्ण हमने रजिस्टर किया है। अभी हाल में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने ये एक सशक्त भारत संकल्प जो चलाया है, उसका उद्देश्य है कि दूर दराज के इलाकों में, गांवों में जो जनजातियां रहती हैं और जो अभी तक इन योजनाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जिनको रजिस्टर नहीं किया था, उन सबको रजिस्टर करना जरूरी है। तो ये रथ यात्रा जो आप बाहर देख रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि हम उन सब लोगों तक पहुंचे जिनके पास अभी तक सरकार पहुंची नहीं है और उनको सबको बेनिफिशियरी रजिस्टर करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि इसके साथ साथ और भी जो प्रोग्राम्स उन्होंने 2 अनाउंस किए हैं, एक जन औषधियों की जो उपलब्धियां हैं वो पूरे देश में 10,000 जगह पे खुली है और उसको 25,000 करने की कोशिश अभी जारी है। दूसरा जो उन्होंने एक सुविधा और अनाउंस की है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए है, और एक बहुत मॉडर्न सुविधा है जो उन्होंने जिसके बारे में बताया है कि इन महिलाओं को हम ड्रोन्स देंगे। ड्रोन होते हैं जो आप देखते हो, उड़ के फोटो लेते हैं और उसका उपयोग होगा कि दवाइयों को वो दूर दराज के इलाकों में पहुंचा सके ड्रोन्स के जरिए। और भी जो सुविधाएं ड्रोन्स ले जा सकता है, छोटी मोटी चीजें, वो उन एरिया तक ले जाए जहां पर गाड़ियां नहीं जाती हैं, जहां दिक्कत है। तो ये सुविधा भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद में इसका प्रयोग हम गांवों में, शहरों में सब जगह कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी योजनाएं गांव-गांव में, सारी पंचायतों में, लगभग पूरी देश की जितनी पंचायत है 600-700 से ज्यादा, उन सब में जो है ये पहुंच रही है और जो बेनिफिशियरीज हैं उनके अकाउंट में पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट में बैंक में जा रहा है। ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं हुई और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर की व्यवस्था का प्रयोजन है। तो एक बहुत बड़ी बात है, हमारा भारत विकसित हो, डेवलप हो, आगे बढ़े और दुनिया में एक अच्छा नियम कायम करे
जो पुरातन वक्त में हमारे भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वापस हम उस दर्जे को हासिल करें और विश्व में शांति फैलाए, विश्व में सद्भाव फैलाए और वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है कि पूरा विश्व एक परिवार है, उसको सार्थक करें। ये सब योजनाएं तब सफल होगी जब इसके अंदर आपका सहयोग होगा। आपने इतने उत्साह से इस प्रोग्राम में भाग लिया है, तो मुझे इसमें संदेह नहीं है कि इसका आपका पूरा पूरा सहयोग हमें इन योजनाओं को सफल बनाने में मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आने वाले वक्त में ये योजनाएं चलती रहेंगी और इनको और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे और सबसे ज्यादा जो इन योजनाओं का उद्देश्य है सबसे बड़ा, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत जरूरी है कि अगर हम विश्व गुरु का दर्जा लेने चाहते हैं तो हम सब शिक्षित हों। तो मेरी सभी पेरेंट्स जो हैं, जो माँ बाप हैं, उनसे प्रार्थना है, जो टीचर्स हैं उनसे प्रार्थना है, जो जीबीज हैं उनसे, पंचायत से, सभी से कि अपने बच्चों को कम से कम 10+2 की पढ़ाई पूरी कराएं। जो नए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है, उसमें हर एक में कम से कम शिक्षा का स्तर 10+2 होता है। अगर आपके बच्चों ने हासिल नहीं किया है तो वो रोजगार से वंचित रहेंगे, ये हम नहीं चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक नया एजुकेशन पॉलिसी भी जारी की है, जिसके अंदर शिक्षा के साथ साथ आपकी स्किलिंग भी होगी, यानी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी दूसरे सेक्टर्स में, चाहे फार्मिंग हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, छोटी छोटी चीज़ों की स्किलिंग होगी, ताकि शिक्षा जो नहीं कर पाते हैं वो स्किलिंग के माध्यम से उनको जॉब्स मिल जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक बदलाव है जो शिक्षा के जो नीति है उसके अंदर आ रहा है। तो शिक्षित होना है, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू बी एजुकेटेड। दूसरा है स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप सभी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। तो स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है, जिस्मानी तौर से, दिमागी तौर से हमें स्वस्थ रहना है। और स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी योजना है, आयुष्मान भाव से लेके और भी जो आपको औषधियां जो है कम दाम में उपलब्ध हो रही हैं, तो इसका लाभ उठाएं। इसके साथ साथ जो बीमारियां हैं और जो व्यसन है, टीबी, कैंसर, जो ड्रग्स का व्यसन है जिन लोगों को, इसको भी दूर करना है। कि हम 2025 से पहले टीबी का खात्मा करेंगे पूरे देश में। तो उसके ऊपर भी योजनाएं चल रही हैं, इनकी मेडिसिन की उपलब्धियां आपको दी जा रही हैं। वो इसीलिए है कि हम टीबी के मरीजों को कम से कम सबको स्वस्थ करें और टीबी को अपने देश से भगा दें। ड्रग्स का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है जो हमारे इलाके में भी प्रचलित है। तो हम चाहते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाएं, रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजें लोगों को जो पीड़ित हैं और उनको दोबारा स्वस्थ करने की कोशिश करें। ये एक बहुत बड़ा अभियान है जो आपकी सहायता के बगैर कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो हर गांव में, हर शहर में, हर इलाके में जो बड़े हैं, माता पिता हैं, टीचर हैं, जो प्रशासन के मेंबर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। मैंने कल जो तिराप में एक जगह देखा, एनजीओ
ग्रस्त लोगों को मुक्त कराने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सराहनीय है ये प्रवास। और बाकी डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में तिराप डिस्ट्रिक्ट में नशीली पदार्थ सेवन करने वाले कम हैं, लेकिन ये कम को बिल्कुल जीरो करना है। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर है सेंट्रल यानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, स्टेट की तरफ से, और पूरी कोशिश हमें करनी है कि इनको सफल बनाना है। आखिर में मैं आपके एमएलएस का, आपके अधिकारियों का, डीसी एसपी साहब का और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि खराब मौसम होते भी आपने इतना अच्छा आयोजन किया। और मुझे और मेरी पत्नी को यहाँ आके बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, और ये अच्छी यादें हम अपने साथ ले जाएंगे ईटानगर, और जो भी मेमोज आपने दिए हैं उसके ऊपर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय अरुणाचल, जय हिंद। थैंक यू ऑनरेबल सर। सर का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, एजुकेशन, हेल्थ और ड्रग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान जाए। और जैसे सर ने हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस किया है, सर का तरफ से पीपल ऑफ तिनसा के लिए टोकन ऑफ लव है, जो हम लोग का लाइफ का एक बेसिक नेसेसिटीज, डाइट का जो बेसिक नेसेसिटीज होता है, नमक। तो सर आप लोग के लिए 500 kgs ऑफ सॉल्ट लिया गया है। तो उसके लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द राजा एंड द जीबी ऑफ तिनसा विलेज टू रिसीव, प्लीज। Thank you, sir. Lastly, I would like to thank every one of you. And sir, it was an honor to have you here today at the Sarkar Aapke Dwar. And now I would like to invite sir and all the dignitaries to visit the stalls. हेलो सर। स्टॉल सेक्शन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट हमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ देते हैं, बहुत सारे स्कीम्स हमारे लिए निकालते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली जो गांव में रहते हैं, जो टाउन से दूर रहते हैं, वो लोग इन चीज़ों से अनअवेयर रहते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सेवा आपके द्वार सेशन निकाले हैं, ताकि हर डिपार्टमेंट आके उन लोगों का मदद कर सके जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। अगर आपने गवर्नर सर का स्पीच सुना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो सेशन है, वो किस लिए और किसके लिए बनाया गया था। और ये सेक्शन में हेल्थ से रिलेटेड जितना भी डिपार्टमेंट्स है वो मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दुलारी कन्या जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो स्कीम है, उनको कैसे आपको अवेल करना है, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे यहाँ पे। और
यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल डिपार्टमेंट्स हमें फ्री ट्रीटमेंट भी दे रहे थे, मेडिसिन वगैरह भी दे रहे थे, और जो भी मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज है आप उनसे जाके डायरेक्टली पूछ सकते हो ये दिन में। और यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनाने वाले डिपार्टमेंट भी आए हुए थे, तो यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं अपना अपना कार्ड। अगर आप डिपार्टमेंट विज़िट नहीं कर सकते हो तो कभी भी अगर आपको ये सेशंस के बारे में सुनाई देते हैं तो आप विज़िट करिए, और आपको जो भी क्वारीज करने हैं उन डिपार्टमेंट में जाके आप क्वारीज कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का प्रोग्राम खत्म हो चुका है एंड आई रियली होप कि आप सभी को मेरा वीडियो आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो। स्पेशली हमारे गवर्नर सर की जो स्पीच है आप सभी को समझ में आया हो, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही स्पेशल था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। उन्होंने ऐसे बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें बताया है जिनका बारे में बहुत सारे लोग अनअवेयर रहते हैं, और बहुत सारे आइडियाज़ उन्होंने बताया है और बहुत सारे स्कीम्स के बारे में बताया है उन्होंने, और आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, आगे क्या क्या करने वाले हैं, ऐसे बहुत से चीज़ों के बारे में बताया है। तो अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ और एक बार रिपीट करके देखिए और ट्राई करिए आप भी अपना लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए।